نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حدیث مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا. حدیث مبارکہ بخاری شریف. اب نظر ڈالتے ہیں دعائیں اس پر. موجودہ حکومت میں لینڈ گریبنگ عروج پر، اصل پٹے داروں سے اراضی چھینی جا رہی ہے، کانگریس خاموش نہیں رہے گی، قائدین کا بیان. سالورہ PHC کے تحت ویکسینیشن پروگرام کے تحت ٹیکہ اندوزی کی 90% تک تکمیل، ڈاکٹر ریکھا اور ان کی ٹیم رات دیر گئے تک کام کر رہی ہے، بدا راجیشور نے ستائش کی. MLA بیگلا گنیش گپتا کے ہاتھوں CM ریلیف فنڈ کے چیکوں کی تقسیم. انہوں نے کہا کہ طبی امداد کے مستحق افراد کی ممکنہ مدد کی جا رہی ہے اور دیگر اسکیمات پر بھی مؤثر عمل آوری ہو رہی ہے. راما ریڈی منڈل میں ٹریکٹر حادثہ، ٹریکٹر کے الٹ جانے سے 2 افراد ٹریکٹر کے نیچے دب کر برسرا موقع ہلاک ہو گئے. مقامی عوام نے بڑی مشکل سے نعشوں کو باہر نکالا. اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب. موجودہ حکومت میں لینڈ گریبنگ عروج پر ہے. سرکاری اراضیوں پر قبضوں کے علاوہ پٹا رکھنے والے خاندانوں کو بھی بے گھر کیا جا رہا ہے. ان حالات میں کانگریس خاموش نہیں رہے گی، کانگریس قائدین کا بیان. آج کانگریسی قائدین نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا. ڈویژن 13 دھرمپور ہلز میں حال ہی میں محکمہ ریونیو کی جانب سے دوسری مرتبہ انہدامی کارروائی کی گئی اور کئی غریب خاندانوں کے مکانوں کو توڑ کر ان خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا. اطلاع ملنے پر آج ضلع نظام آباد کے سرکردہ کانگریسی قائدین نے ان علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرہ افراد سے ملاقات کی. ان میں ریاستی ورکنگ صدر مہیش کمار گوڑ، ریاستی سیکریٹری گڑگو گنگادھر، سابق صدر ضلع کانگریس طاہر بن حمدان شامل تھے. ان قائدین نے کہا کہ ان غریب خاندانوں کو کانگریس نے اپنے دور حکومت میں اراضی اور پٹے دیے تھے اور اب ان پٹے رکھنے والے خاندانوں کو اگر حکومت نکال پھینکنے کی کوشش کرتی ہے تو کانگریس خاموش نہیں رہے گی. ان قائدین نے کہا کہ اس علاقے میں لینڈ گرابرز بھی سرگرم ہیں جو لوگوں کو جھانسا دے کر ان کے پٹے اور اراضیوں کو ڈبوں کے دام خریدتے ہیں یا پھر ان کی اراضیوں پر جبری قبضے کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف کانگریس سخت رویہ اختیار کرے گی. مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ موجودہ حکومت میں لینڈ گریبنگ عروج پر ہے. کل اگر کانگریس کی حکومت آئے گی تو ان قبضوں کو نکال پھینکا جائے گا اور لینڈ گرابرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس موقع پر جاوید اکرم، عبید بن حمدان، محمد عیسیٰ، معین یونس، محمد ضیاء، محمد احمد، محمد اعجاز، سید عارف، سید قیصر اور دیگر موجود تھے. اب وہ سرکاری زمینہ چھوڑ کے غریبوں کی زمینوں پہ گر گئے، غریبوں کے پیچھے لگ گئے. اب یہ تو سیدھا کیس ہے. یہ پلاٹا الرٹ ہوئے، شاید اس میں پلاٹا کوئی بیچ لیے ہوں گے، تھوڑے نئے لوگ آ کے خرید لیے ہوں گے. اس کو انکوائر کرنے کا وجہ ہے. اب اس توڑ پھوڑ کر کے حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو توڑ پھوڑ کرے تو کانگریس پارٹی چپ بیٹھنے والے نہیں ہے. یا MIM ہو یا TRS پورے لینڈ گرابر بن گئے. اور بہت شرم کی بات ہے، MLAs MPs بھی لینڈ گرابروں کو سر پہ کندھے پہ لے آ کے چل رہے. لینڈ گرابنگ سرکاری زمینہ پھاڑا کچھ نہیں بچا رہے. اب غریبوں کے پیچھے گر گئے. ایک غریب آدمی ایک پلاٹ پانے کے لیے 10-20 سال تڑپتے رہتے ہیں، تبھی اس کو ایک پلاٹ ملتا. اور یہ سرکار کانگریس سرکار دیے سو پلاٹا ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پینٹر کالونی بھی کانگریس سرکار میں دیے، ڈرائیور کالونی بھی کانگریس سرکار میں دیے، یہ ہمارے لوگوں کو کانگریس سرکار میں دیے، ملا موٹا والوں کو دیے، A20 وہ بھی دیے اندرما ہاؤسز کے نام پہ. سرکار کی زمین کانگریس پارٹی غریبوں کو بانٹتی آئی. دوسرے لوگ یہاں پہ قبضہ کرے بیچے، جو ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کر رہے، اس کو برابر ہم لوگ کلکٹر کے نوٹس میں لائیں گے. اور کلکٹر صاحب سے یہاں پر ہمارے سب کی طرف سے ایک ہی گزارش ہے کہ سروے نمبر جو پٹا ہے کلکٹر MRO RDO دیا سو ہے آپ کو، اس کو امیڈیٹلی آپ کینسل کیسا کر سکتے صاحب؟ اگر اوریجنل آدمی نہیں ہے، اگر انہیں بیچ لیا سو آدمی خریدار ہے، وہ انکوائری کر کے آپ کچھ کرنا چاہیے. ان کے گھراں گرا دیے، آج روڈ پہ لے کے لائے وہ لوگوں کو. کلکٹر صاحب آپ ضلع کے کلکٹر ہے، میں کلکٹر صاحب کو ادباً گزارش کرتا ہوں یہاں سے کہ یہ واقعی اصل کیا ہے اس کے پیچھے آپ انکوائری کرو. جو حق کے مالک ہے وہ لوگوں کو یہاں پر بٹھاؤ، یہاں پر بٹھا کے
डबल बेडरूम कहाँ दे रहे पता नहीं, हमको मगर उनको मकान बना के दो, ये हमारा डिमांड है। लेकिन उससे पहले जो भी यहाँ पर ये मसले को डाइवर्ट करना चाह रहे उनके ऊपर आप बोले स्टेटमेंट, मैं कलेक्टर साहब का स्टेटमेंट पढ़ा, मैं उनके ऊपर पीडी एक्ट लगाता हूँ, उनको जेल भेज दूँ बोल के जो कलेक्टर साहब बोले, मैं कलेक्टर साहब से बोल रहा हूँ आज कुछ 6 दिन हुआ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठे खवातीन, कितने लोगों पे आप पीडी एक्ट करें, कितने लोगों पे केस बुक करें, ये यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस भी आए तो कलेक्टर साहब को ये मैसेज पहुँचाना ज़रूरी है। क्योंकि पीडी एक्ट बोले तो जो सरकारी ज़मीन को कब्जा करे से वाले के ऊपर लगाना या सरकारी ज़मीन गैर कानूनी कागज़ बनाकर पट्टा कराए से वाले पर बनाना। सालूरा पीएससी के तहत वैक्सीनेशन के नशाने की 90% तक तकमील, रात देर गए तक टीका अंदोजी मुहिम जारी, मोबाइल टीका मुहिम भी चलाई जा रही है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा की खिदमत काबिल सताइश व नाकाबिल फरामोश। टीआरएस कायद बुद्धा राजेश का बयान। फर्शनासी और एहसास जिम्मेदारी बहुत अहमियत की हामिल होती है, मगर अक्सर ओहदेदार अपने फराइज के तय लापरवाही व गफलत का मुजाहरा करते हैं। दफ्तर के औकात के खत्म होते ही इनको मकानों को वापस होने की फिक्र रहती है और इनके जुम्मे जो काम होता है उसकी तकमील होती है या नहीं इसकी इनको कोई फिक्र नहीं रहती। लेकिन बाज़ ओहदेदार ऐसे भी होते हैं जिनको अपने फराइज को मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वक्त की इनके पास अहमियत नहीं होती और ये ओहदेदार अपनी ड्यूटी औकात के खत्म होने के बाद भी रात को देर गए काम करते नजर आते हैं। ऐसे ही फर्शनास ओहदेदारों में अब एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया है और वो नाम है बोधन मंडल के मुअज़्ज़िज़ सालूरा की पीएससी की मेडिकल ऑफिसर रेखा का। डॉक्टर रेखा ने इससे कबल भी अपने पीएससी को फाल व मुतहरिक बनाने के लिए मुतादिद इक़दामात को रोब अमल लाया था और जबरदस्त शोहरत हासिल की थी और अब कोरोना के तीसरे लहर के खदशात का इजहार किया जा रहा है और ओमिक्रॉन के फैलने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत और जिले हुकाम वैक्सीनेशन को 100% बनाने के लिए सरगर्दा है, लिहाजा इस वैक्सीनेशन को 100% मुकम्मल करने की गर्ज से डॉक्टर रेखा ने रात देर गए 10 तक 11 बजे तक लोगों के घरों पर पहुंचकर उन्हें टीका देने का काम शुरू किया, क्योंकि बेशतर लोग मजदूर पेशा होते हैं और दिन भर काम में मसरूफ रहते हैं और ये लोग रात 8 बजे तक 9 बजे अपने मकानों को वापस आते हैं। ऐसे थके हारे लोगों को इनके घर पहुंचकर रात के वक्त टीका देने की मुहिम का डॉक्टर रेखा ने आगाज किया। इसी तरह उन्होंने गरीब और माजूर अफराद की सहूलत के लिए मोबाइल टीमों का भी एहतमाम किया। पीएससी का अमला जिनकी ज़ाती मोटरसाइकिलें होती है वो आशा वर्कर्स और तिब्बी अमले को अपनी मोटरसाइकिलों पर गाँव-गाँव ले जाते हैं और टीका अंदोजी की जाती है। इस मुहिम की सालूरा एमपीपी बुद्धा सावित्री, टीआरएस सीनियर कायद बुद्धा राजेश्वर और सालूरा कैंप सरपंच श्रीनिवास राव ने जबरदस्त सताइश की। बुद्धा राजेश्वर ने कहा कि सालूरा पीएससी की हुदूद में 70,000 की आबादी है और अब तक वैक्सीनेशन का निशाना 90% तक मुकम्मल कर लिया गया है। इस तरह टीका अंदोजी मुहिम में सालूरा पीएससी जिला भर में सरे फहरिस्त है, जिसका सहरा मुकम्मल तौर पर डॉक्टर रेखा के सर जाता है। इस मौके पर सुपरवाइजर इंदिरा सुनीता भी मौजूद थी। ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బోధన మండలం సాలూరా పిఎస్సి పరిధిలో మరి గౌరవ మన పిఎస్సి మెడికల్ ఆఫీసర్ సోదరిమణి మన రేఖా డాక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఏదైతే జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశించారో దానికి అనుగుణంగా మరి ప్రతి గ్రామంలో మరి మిగిలిపోయినటువంటి కోవిడ్ ఇంజెక్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళ లిస్టుని ప్రకారము మరి రాత్రిపూట ఇంజెక్షన్ చేయాలని చెప్పి కలెక్టర్ గారు ఆదేశించారో దానిలో భాగంగా ఈరోజు బోధన ఎంపీపీ గారు బుద్ధ సావిత్రి గారు, అది స్థానిక సర్పంచ్ మిత్రులు శ్రీనివాస్ గారు, మరి అదేవిధంగా మెడికల్ సిబ్బంది గారు ఈరోజు ఇక్కడికి సాలూరా క్యాంపు గ్రామంలో రావడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే ఉద్దేశంతో గౌరవ కలెక్టర్ గారు ఏదైతే ఉదయాన్నే కొంతమంది కూలీలు వారికి ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా పొద్దున వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి వారికి సమయాభావం కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కాబట్టి మరి దానికి అనుగుణంగానే సాలూరా పిఎస్సి జిల్లాలోనే మరి వ్యాక్సినేషన్లో టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీలో ఉంది. अर्बन विधायक बिगला गणेश गुप्ता के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि अवाम को तिब्बी इमदाद की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन कोशिश, बेशुमार स्कीमा से अवाम को मुस्तफीद किया जा रहा है।
शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड चेक तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता और शहर की मेयर नीतू किरण ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली बिगला ने 28 इस्तेफादा कुनिंदगान में मंजूर करदा चेक तकसीम किए। बावजह उन्होंने अपने खिताब में कहा कि गरीब व मुस्तहिक अवाम की राहत रसानी और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने और कॉरपोरेट दवाखानों में इलाज व मुआलजे के लिए सीएम रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त देने पर इमदादी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई है। और उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वजीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत के तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए स्कीमात पर अमल आवारी जारी है और दीगर स्कीमात भी जारी है और रियासती हुकूमत अवाम के मफाद में काम करती है। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर, टीआरएस कायद सुजीत सिंह, सत्य प्रकाश, चंद्रभूषण व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर अचानक टायर के फट जाने से उलट गया और ट्रैक्टर की जद में आकर ट्रैक्टर में सफर करने वाले 2 अफराद बरसर मौका ही हलाक हो गए। मुकामी अफराद ने उनकी नाशों को बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर के नीचे से निकाला। कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल के मौजा गिद्दा के रहने वाले 2 अफराद हादसे का शिकार होकर बरसर मौका हलाक हो गए। बताया गया है कि मौजा गिद्दा के रहने वाले साबिक सरपंच नैनी आसम रेड्डी और एक गंगा रेड्डी एक ट्रैक्टर पर सवार होकर रामारेड्डी सब स्टेशन से दूसरे मुकाम के सिमत जा रहे थे। उनका ट्रैक्टर तेज रफ्तारी से सफर कर रहा था। अचानक ही ट्रैक्टर का अगला टायर बस्ट हो गया और तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर उलट गया और ट्रैक्टर में सफर करने वाले आसिम रेड्डी और गंगा रेड्डी ट्रैक्टर के नीचे आकर दब गए और बरसरा मौका ही हलाक हो गए। मुकामी अफराद ने बड़ी मुश्किल से उनकी नाशों को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला और पुलिस को इसकी इत्तला दी। इस हादसे पर मुकामी अवाम ने अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। वेलपुर पीएचसी में 8 बेड पर मुश्तमिल आईसीयू और 6 ऑक्सीजन बेड्स का इंतजाम किया गया। रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी अवाम को बरवक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए कोशा है। 31 लाख की लागत से उन सहूलतों की फराहमी के लिए खर्च की गई है। निजामा जिला बालकुंडा हल्के के वेलपुर मुस्तखर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 8 आईसीयू और 6 ऑक्सीजन बेड्स का रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हेल्थ सेंटर में आईसीयू बेड्स नहीं था, जिसकी वजह से आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स को 31 लाख रुपयों की लागत से आवाम की सहूलत के लिए कायम किया गया है ताकि आवाम को इससे फ़ायदा हासिल हो और कहा कि रियासती हुकूमत गरीब व मुस्तकीन के लिए बेशुमार इक़दामात कर रही है और कहा कि हुकूमत सरकारी दवाखानों को कॉरपोरेट दवाखानों के तर्ज पर तरक्की देने के ख्वाह है। उन्होंने आवाम से अपील की कि कोविड एहतियाती तदाबीर पर इख्तियार करे और कहा कि हुकूमत कोविड का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने डॉक्टर्स को हिदायत दी कि सरकारी दवाखानों में आने वालों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करे और रियासती वजीर ने बताया कि ज़िला कलेक्टर और तिब्बी अमला ने जो कोरोना से निमटने के लिए कड़ी मेहनत की है वो काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर की अहलिया निर्जा रेड्डी, एमपीपी, जेडपीटीसी, डीएमएनएचओ, निजामाबाद जिला हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट व दीगर ने शिरकत की। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने गोपाल बाग का दौरा किया, कचरे की सफाई करने और पत्थरों की नक्काशी करने की हिदायत दी। पौधों की बरवक्त सिंचाई न करने पर अपनी बरहमी का इजहार किया और आवाम से अपील की कि शहर को साफ और शफाफ बनाने में ताउन करें। शहर के गोपाल बाग, रेणुका नगर इलाकों का शहर की मेयर नीतू किरण ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर मेयर ने गोपाल बाग इलाके की सड़कों पर पड़े पत्थरों और कचरे को हटाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मेयर ने गोपाल बाग इलाके की सड़कों पर पड़े पत्थरों और कचरे को हटाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने जेसीबी की मदद से नहर में जमा कीचड़ को निकालने की हिदायत दी और सड़क के दोनों जानिब लगाए गए पौधों को पानी न देने पर ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर की और कहा कि खिदमत में लापरवाही व गफलत का मुजाहरा न करे और खिदमत को बर वक्त अंजाम देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। को गंदगी से पाक करने हुकाम को हिदायत दी और कहा कि शहर को साफ सुथरा बनाने में ताउन करें। उन्होंने आवाम से अपील की कि कचरा नालियों और सड़कों पर न डालें, शहर और आसपास में सफाई का खास ख्याल रखें। गंदगी होने की वजह से वबाई अमराज में मुब्तला होने का खतरा रहता है। इस मौके पर मेयर के हमरा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन लैब, फार्मेसी
एक्स रे दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरीती भी आला से लेकर आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, एमजी मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है। बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है। साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। महजे में एमएलसी इंतखाब के लिए राय दही का इनेकाद। टीआरएस और आजाद उम्मीदवार में राज मुकाबला। राय दही का तनासुब 100% रहा। पुलिस ने मौसर सियानती इंतजाम किए थे। मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद में एमएलसी इंतखाबात की आज पोलिंग अमल में लाई गई, जिसके पेश नजर भैंसा शहर के अतराफ व अकनाफ के वोटर्स के लिए भैंसा शहर के एमपीडीओ दफ्तर में पोलिंग बूथ बनाया गया था। इस बूथ में जुमला 102 वोटर्स के नाम दर्ज है। पोलिंग को लेकर वोटर्स की जानिब से काफी जोश खरोश देखा गया। सुबह की अव्वल इन सातों से ही वोटर्स वोट डालने के लिए कतार में इंतजार करते हुए देखे गए। पोलिंग का आगाज सुबह 8:45 से हुआ। मरकज के अतराफ कई फासले तक बारगेट से घेरते हुए पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त देखा गया। पोलिंग जिम्मेदारान और पुलिस की जानिब से वोटर्स के बारीकबीनी से जांच करते हुए मरकज में दाखिले को मुमकिन बनाया गया। पोलिंग के दौरान भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे ने वक्फे से मरकज का दौरा करते हुए मुकम्मल हालात का जायजा लेते हुए हालात पर नजर जमाए रखे हुए थे। वाज़ेह है कि जिला आदिलाबाद एमएलसी के लिए जुमला 24 अफराद ने अपने नामों का इंदराज करवाया, जिसमें से 22 अफराद ने अपने नामों को वापस लेते हुए इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गए। बाकी 2 उम्मीदवारों में मुकाबला जारी रहा, जिनमें एक टीआरएस और एक आजाद उम्मीदवार शामिल है। वोटर्स के मुताबिक 2 उम्मीदवारों में कड़े मुकाबले की उम्मीद जाहिर की गई। इसके अलावा आजाद उम्मीदवार की जानिब से 4 बोकस वोट डाले गए, जिसको फौरी तौर पर पकड़ा गया और इसकी इत्तला फौरी तौर पर आरडीओ वेंकटेश वर्लू को दी गई, जिस पर आरडीओ ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर इनके वोटर्स को रद्द कर दिया। इस तरह पोलिंग ओहदेदारों के मुताबिक जुमला पोलिंग का फीसद 100% रहा। 11 दिसंबर को सदाए उर्दू सोसाइटी की जानिब से नेशनल स्कूल में शेरी निशिस्त का एहतमाम। मिर्जा अफजल बेग तेजान सदारत करेंगे, जबकि मीर मजाज अली मेहमान खुसूसी होंगे। अशफाक असफी और शरीफ अत्तर को शेरी खिदमत पर तहनीत पेश की जाएगी। 11 दिसंबर 2021 बरोज़े हफ्ता 9 बजे सदाए उर्दू सोसाइटी की जानिब से नेशनल हाई स्कूल किला रोड निजामाबाद में एक अजीमुशान मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। मुशायरे की सदारत जनाब मिर्जा अफजल बेग तेजान, मालिक तेजान ट्रेडर्स व सदर सदाए उर्दू सोसाइटी फरमाएंगे। मीर मजाज अली साबिक़ डिप्टी मेयर निजामाबाद मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इनकी सियासी व समाजी खिदमत पर और जनाब अशफाक असफी साहब
और जनाब शरीफ अतहर को इनकी शेरी व अदबी खिदमात पर सोसाइटी की तरफ से तहनीत पेश की जाएगी। मुशायरे में अशफाक असफी, शरीफ अतहर, प्रोफेसर जक्की शुतारी, सिद्दीक वफा, शोएब दानिश, फारूक अता, रफत अकबानी, सैयद यूनुस, आमिर दिलावर, सैयद मजहर अपना कलाम सुनाएंगे। इफ्तिखार निहाल, शहजाद मिर्जा व दिगर मुंतखबा कलाम सुनाएंगे। नजामत के फराइज डॉक्टर रजी शुतारी, नायब सदर सदाए उर्दू सोसाइटी, बज़्म में शायरी अदा करेंगे। उर्दू के चाहने वालों से शिरकत की गुजारिश की जाती है। मोसरा मंडल के मौजा गौर में फंक्शन हॉल की तामीर के लिए पोचाराम भास्कर रेड्डी के हाथों संगे बुनियाद। उन्होंने कहा कि मुमकिन हद तक अवाम को सहूलतें फराहम करना हमारा मकसद है। उन्होंने शादी खाने से इस्तेफादा करने अवाम से ख्वाहिश की। मोसरा मंडल में जनरल फंक्शन हॉल की तामीर के लिए संगे बुनियाद प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत की और फंक्शन हॉल की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि इस फंक्शन हॉल की तामीर से देहाती आवाम को काफ़ी सहूलत हासिल होगी और कहा कि हमारा मकसद आवाम को बेहतरीन खिदमत फराहम करना है। उन्होंने आवाम से फंक्शन हॉल से इस्तेफादा की ख्वाहिश की और कहा कि देहातों की तरक्की के लिए बेशुमार इकदाम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में रियासती सदर पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, सरपंच सुरेंद्र रेड्डी, वाइस एमपीपी शंकर, सोसाइटी चेयरमैन सुधाकर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। एडबली मंडल के मौजा पोचाराम में सीसी कैमरों की तंजीम एसीपी रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा नेचर पार्क का भी इफ्तिताह किया गया। एसीपी बोधन ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से इशरार पर नजर रखने और अमन व अमान को बहाल रखने में मदद मिलेगी। एडपल्ली मंडल मुस्तकिल के मौजा पोचाराम में सीसी कैमरों का इफ्तिताह और नेचर पार्क की इफ्तिताही तकरीब देहाती ओहदेदारों ने मुनक्किद की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बोधन एसीपी रामाराव, सीआई इंद्राकरण रेड्डी और एसआई रविंद्र नायक ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों ने मौजा में लगाए गए सीसी कैमरों का इफ्तिताह किया। बाद अज़ान नेचर पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एसीपी रामाराव ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे मौजात में अमन व अमान को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं और एक सीसी कैमरा 100 पुलिस मुलाजिमीन के बराबर है और कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए गांव के नुमाइंदों ने देहात में सीसी कैमरे नस्ब करना काबिल सताइश है। बाद अज़ा उन्होंने नेचर पार्क का दौरा किया और इसमें लगाए गए पौधों का मुआयना किया। इस प्रोग्राम में गांव के सरपंच इंद्राकरण, नायब सरपंच शोभा पोशेट्टी, एमपीटीसी पद्मा मुतैना, वीडीसी चेयरमैन गंगाधर व दीगर मौजूद थे। क्षत्रिय कॉलेज आरमूर में बीजेपी की तरबेती क्लासों का एहतमाम। सदर जिला बीजेपी बसवा लक्ष्मी नरसैया ने कहा कि हमारे सिर्फ 2 एमपी थे, लेकिन पार्टी कायदीन और कारकुनों की शदीद मेहनत ने इसको 303 तक पहुंचा दिया। अब हमारा निशाना रियासत तेलंगाना है। आरमूर में वाक़ क्षत्रिय इंजीनियरिंग कॉलेज में बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया की सदारत में तरबेती क्लासों का आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सिद्दीपेट के साबिक जिला सदर नैनी नारतुंगना रेड्डी ने शिरकत की। बसवा लक्ष्मी नरसैया ने कहा कि बीजेपी पार्टी दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी है। इस क़ुव्वत को सियासी मैदान में आगे ले जाने के लिए कारकुनों की तरबियत इंतहाई अहमियत की हामिल है और उन्हें वक्तन फ़क्तन समाजी व सियासी हर लिहाज से अपडेट करने और मज़ीद निखारने के लिए ये तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया है। आज बीजेपी पार्टी 2 सीटों से 303 सीटों पर पहुंच गई है। हम इसी तरह काम करते रहे तो तेलंगाना में हमारी हुकूमत होगी और हम बरसरे इख्तिदार रहेंगे। और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजों और मसाइल का सामना किया है। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पार्टी को मजबूत व मुस्तकम करना है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी नज़रिया मुत्तहिद इंसानियत है और हिंदुस्तान के हर फर्द को तरक्की याफ्ता फ़र्द बनाना हमारा मकसद है। वज़ीर आज़म की मुतारुफ़ कराई गई स्कीमात को अवाम तक ले जाना और उनसे हर फर्द को वाकिफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है। आने वाला दौर बीजेपी का है। बीजेपी ही अवाम के लिए काम कर सकती है। इस प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी पी गंगा रेड्डी, लोका भूपति रेड्डी, अलजापुर श्रीनिवास के दिनेश, शिवराज कुमार व दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौजूदा हुकूमत में लैंड ग्रैबिंग उरूज पर, असल पट्टेदारों से अराजी छीनी जा रही है। कांग्रेस खामोश नहीं रहेगी, कायदीन का बयान। सालूरा पीएससी के तहत वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत टीका अंदोजी की 90% तक तकमील। डॉक्टर रेखा और उनकी टीम रात देर गए तक काम कर रही है। हुदा राजेश्वर ने सताइश की। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि तिब्बी इमदाद के मुस्तहिक अफराद की मुमकिन मदद की जा रही है और दीगर स्कीमात पर भी मुअस्सर अमल आवारी हो रही है।
रामारेड्डी मंडल में ट्रैक्टर हादसा, ट्रैक्टर के उलट जाने से 2 अफराद ट्रैक्टर के नीचे दबकर बरसरा मौका हलाक हो गए। मुकामी अवाम ने बड़ी मुश्किल से नाशों को बाहर निकाला। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।